divine greetings of this auspicious day to all of you. Yes, it's Saturday. Saturday is actually spelled as Saturday. Initial three words are Sat, which is called as Sat, Satyata. Then is your. Then that means if we are true within, then obviously it's our day. Sat, your day. आप अंदर सत्य है, आपका दिन है. And what is today? What does this symbolize? आज क्या है? It's Hanuman Jayanti. Hanuman Jayanti. इसमें बहुत ही गहरा रहस्य है जो हम समझते हैं, my dear friends. And you know, जब हमने इनिशियली जिससे स्टार्ट किया आज का सेशन, सत योर डे, इफ यू आर ट्रू विद इन, अगर आप अंदर सत्य स्वरूप है, आपने अपने सत्य स्वरूप को पहचाना, तो दिन तो आपका है. इट्स योर डे, सत योर डे, सैट और डे. एंड उसके बाद क्या आता है? रविवार. इट इज कॉल्ड संडे. सन, सूर्य, ज्ञान सूर्य के दिन की, जब आपने अपने अंदर के सत्य को पहचाना, सत योर डे, तो जो अपकमिंग डे है वो जाले से भरपूर है. दैट इज अ संडे, दैट इज द रविवार. एंड coincidentally, my dear friends, I believe it's not a coincidence, it's rather the divine plan actually. Today Hanuman Jayanti is falling on Saturday. Hanuman, इसमें हम एक श्लोक से इसका शुरुआत करते हैं. श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर बिमल यश जो दायको फल चारे, बुद्धिहीन तन जान के सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार. ये क्या है? हनुमान चालीसा का इनिशियल फ्रेज. व्हाट डज दिस मीन? माय डियर फ्रेंड्स, हनुमान actually symbolizes the guru, और गुरु है सत्य. तो गुरु को किसने पहचाना? जो अंदर से सत्य है, जिसके अंदर सत्य है बसा, जिसके अंदर ट्रुथ है बसा. दैट इज जिसके अंदर राम को पाने की लालसा है, राम को पाने की अंदर से एक डिवाइन क्यूरियोसिटी है, एक डिवाइन पीस है. मतलब उसके अंदर गॉड को रियलाइज करने का एक बहुत ही ब्यूटिफुल सीड है कि आई जस्ट वांट टू रियलाइज द गॉड व्हाइल डूइंग ऑल माय डेली कर्मास. एंड उसी खोज में जब उसके अंदर वो चीज़ समाई है, उसी खोज में वो उसको क्या प्राप्त होता है? उसको गुरु प्राप्त होता है जो उसको सत्य को रियलाइज करवाने में उसकी हेल्प करता है. इसका एक बहुत ही सुंदर मिसाल है. That is during the Ramayana when the mother Sita was captivated in the Ravan's kingdom. Even though there was darkness all around, metaphorically we can symbolize it as this thing, that the darkness all around, illusion all around, but still there is an inner desire, the great inner desire to actually get liberated, with Ram in constant remembrance 24/7. Then only Hanuman was able to reach there, because simultaneously God, our supreme parent, also has the similar feeling to get the soul awakened, to get the soul liberated. That's why he sent Hanuman. And when he reached there, how did Sita recognize that he is the Ram Doot, and he is not another component of Ravan's plan? When when Hanumanji actually show her the ring, which is the eternal mystery, which is the eternal joining
component of Sita and Ram. So Sita can be visualized as a soul who has got entrapped in entrapped in ignorance. But after getting entrapped, she realizes her mistake, but that was little late. And in that process, Ramji also does double the effort to get Sita liberated, and Sita is actually engulfed in Ram's remembrance, and that forms a pure vibe around her, a very pure aura around her that Ravan could not even touch her, despite of his entire motive for which he had captivated Sita using a trick. So, and उसी तड़प and इसी डिवाइन सोच से और इसी डिवाइन क्यूरियोसिटी से उन्होंने हनुमान को पहचाना. हनुमान कौन है? गुरु. Guru is a very, very divine energy which is the enabler of God, which God Himself uses with eternal respect to get His children, the soul children, liberated from falsification and realize the self, and hence realize Him, and hence again re-invoke purity, divinity, and eternal truth which is hidden deep within, and make Ram the constant companion. So Ram here is the metaphor, and that's the very beautiful teaching which we can actually, the teaching lesson which we can actually inculcate among us from this beautiful festival. And from this beautiful festival, Hanuman Jayanti, that is the birth of a Guru and the eternal significance of Guru. That's why the shlok starts as, the Hanuman Chalisa starts as, Shri Guru Charan Saroj Raj Nij Man Mukh Sudhari. If we put the lotus flower on the feet of Guru, that is, we are surrendering ourselves to the Guru, Shri Guru Charan Saroj Raj. Why we are surrendering ourselves? Nijman Mukh Sudhari. That is with the divine intention of only purifying our own mind with a complete surrender on the Guru. Because he has been sent by the Lord, he has been sent by the Lord, he has been sent by the Supreme Father, the Supreme Parent of we the souls, to helping us to actually realize our divine intellect and help us open our third eye of wisdom. The third eye of wisdom, and get free from illusion of falsification. Because how did Sita get entrapped? Sita actually crossed the Lakshman Rekha. What does Lakshman mean? अपने मन को हमने एक लक्ष्य दिया कि हमने प्रभु को प्राप्त करना है. प्रभु की प्राप्ति में ही अपने आप को प्राप्त किया, खुद की सेल्फ रियलाइज करके we realized God, His divine truth, and उन्हीं की रिमेम्बरेंस में हमने कर्मा करने, तब हमने अपने मन को एक लक्ष्य दिया, एक निर्धारित किया. एंड जब हम उस लक्ष्य को, उस लक्ष्मण कि हम उस रेखा को क्रॉस नहीं करना, हमारा वही एक लक्ष्य है. But if we get diverted, or if we get illusioned from that path, or from our divine motive of life, right, while doing our karmas, if we get if we get illusioned, so then that means that we have crossed the Lakshman Rekha and we enter into falsification. That is adding the element of falsification or the overall lies to our karmas. That is forgetting the identity of self and hence Him. तभी गुरु का पाथ एक आता है. That's why it's the eternal beautiful festival. तभी हनुमान जी के मन में क्या दिखाते हैं कि हृदय में कौन है? राम, सीता and Lakshman. Lakshman is also the very beautiful enabler of Sri Ram, helping to liberate, and he is always the forever companion of Ram. And Sita, who actually got entrapped in Ravan's captivation, he put the entire heart and soul and with various enablers to get the soul liberated, and then automatically Ram Rajya came.
एंड हनुमान जी के मन में, उनके हृदय में यही पूरा राम दरबार है, राम, सीता एंड लक्ष्मण. And Hanumanji is on their feet. That is to get the soul free from illusion and hence ignorance, and get in and bring that soul in touch, back in touch with the Supreme Soul, to walk on the path of truth while performing our daily karmas, and that will really add divinity. And वही तो लाएगा राम राज्य, राम लंका का अंत करके. And पूरी हनुमान चालीसा इसकी बहुत सुंदर है. But you know, very deep thing, how did Sita realize that? That is how a soul who got ignorant of her divine karmas, of her true identity, how that soul can really come back to the original state of truth, of self, and hence realize the self and hence him, and realize a true motive of life. अगर मन में सिर्फ सत्य है समाया, जैसे सीता के मन में सिर्फ राम था समाया, तो उनको उस बाहर की सराउंडिंग्स टच नहीं किया. उसी सच की आह में, उसी डिवाइन थॉट प्रोसेस में उन्होंने हनुमान जी को पहचाना. when हनुमान जी show her the ring, which is the divine token of beautiful remembrance of Ram and Sita. That's why when Ravan was carrying Sita, and when Sita realized that during that flight, Sita threw her ring, जो राम और उनकी एक यादगार स्मृति थी, and उसी रिंग से उन्होंने उनकी खोज स्टार्ट करी. When he realized that Sita has got captivated, तो उन्होंने उस मुद्रिका से पहचाना. तो हम इसमें एक बहुत सुंदर श्लोक पढ़ते हैं. वो पढ़े क्या है? शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहर सकता है. शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहर सकता है. That is when our divine intellect is totally pure. When our intellect is totally divine, it is holding, then only it has the beautiful capacity to hold the purest treasures within. शेरनी का दूध, that is the truth. जो Linus है ना, who is the wife of the king of the jungle, the most powerful animal, उसका milk इतना powerful होता है कि किसी utensil में नहीं ठहर सकता. Only the utensil which is made up of gold, only that vessel, only that utensil can actually hold that milk. तो सिमिलरली हमारा इंटेलेक्ट इतना डिवाइन होगा तभी, जब एकदम प्योर होगा उनकी रिमेम्बरेंस में, तभी हम उनको पहचान सकते हैं. वो जो हमें विजडम इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं, वो जो हमें गुरु, एक एनेबलर को हमें सेंड करते हैं इन आइदर फॉर्म. every lesson which we learn in our life is the symbolic of Guru. That is there, and that's why Guru holds a very supreme stature. So does Hanumanji. That's why he's called Mahavir, because in this era of Kali Yuga, which we say, जिसमें बहुत एक तरीके का unjust behavior है, but injustice हो रहा है all around, because it's a cycle of time. तो इसमें बहुत एक बलशाली कोई चाहिए, बुद्धि से बलशाली, with a very divine intent, जिस पे गॉड ट्रस्ट करें एंड उनको वो हमें सेंड करें, हमें लिबरेट करने के लिए, एंड वी रियलाइज हिम. तो उसी को हम कहते हैं महावीर, जो गॉड का एनेबलर है. तभी हनुमान जी हैज बीन कॉल्ड महावीर. एंड दैट्स व्हाई वी सेड टुडे इज शनिवार एंड टुमारो इज रविवार. कल सन का डे है, रविवार, सन डे, दैट इज गॉड का डे. आज है सत. अगर हमने अपने सत्य को आज पहचाना, सैटरडे, सत अंदर जाके पहचाना, then it's entirely your day. आपने अपने सत्य को पहचाना, गुरु के रिमेम्बरेंस में आपने गॉड से आपका सत्य है समाया, इसी में आपने गुरु को पहचाना जिसने आपको लिबरेट कर दिया. That's entirely your day. I followed with the Sunday, उजाला भरा दिन. So, with this beautiful thing, I would also like to say one more thing. Earth, धरती revolve किसके अराउंड करती है? सन के. Earth revolves around the sun. That is, Earth can be visualized as a soul
एंड सोल जो है वो कंटिन्यूसली सुप्रीम सोल को रिमेंबर करना चाहती है, अपने पेरेंट को रिमेंबर करती है. दैट्स व्हाट वी आर सीइंग इन द एंटायर वर्ल्ड. बच्चों को सही विधि पूर्वक रिमेंबर करे तभी धरती पे उजाला आएगा, तभी धरती पे उजाला आएगा. नहीं तो डे एंड नाइट क्यों होता है धरती पे? अगर अर्थ कंटिन्यूसली सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, ये सन है, एंड अर्थ कंटिन्यूसली ऐसे रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड, कंटिन्यूसली उजाला होना चाहिए. बट नो, उजाला क्यों नहीं होता? बिकॉज देयर इज अ वेरी ब्यूटिफुल कनेक्ट कि it's a cycle of time. When a soul gets entrapped in the Ravan kingdom, then there is the night. Correct? But still, a soul has the continuous longing to re-invoke one's own divinity and hence realize God when he or she realizes that she has got entrapped. When से उनके सत्य की खोज है, that is the awakened soul. एंड तब पता है किसकी एंट्रेंस होती है? मून भी वही है. मून अर्थ के अराउंड रोटेट करता है, रोटेट जैसे डे एंड नाइट आता है. करेक्ट? मून रोटेट करता है. मून इज स्टिल देयर, अर्थ इज देयर, द सन इज देयर. इट जस्ट डिपेंड्स कि कौन किस डायरेक्शन में है, उनका आपस में क्या अलाइनमेंट है. बट ये सब सिंक्रोनाइज्ड है. एंड इसी सिंक्रोनी से हम क्या सीखते हैं? बिकॉज दिस इज द इटर्नल ट्रूथ ऑन विच वी आर ऑल्सो लिविंग. तो मून कैन बी विजुअलाइज एज द गुरु. करेक्ट? तो जब सन है, सन से रोशनी आया, उजाला आया. बट एज द डे प्रोग्रेसेस, मॉर्निंग आफ्टरनून आया. मॉर्निंग इज इटर्नल फ्रेश, अमृत वेला जिसमें सन का एंट्रेंस हुआ. जैसे मॉर्निंग आया, मॉर्निंग के बाद आफ्टरनून आया. देर आर फर्दर 4 बाइफिकेशंस दैट इज राइट. बट आफ्टरनून धीरे धीरे सन का इम्पैक्ट कम होता है बिकॉज अर्थ रिवॉल्व कर रही है, रोटेट भी कर रही है, रिवॉल्व भी कर रही है. रिवॉल्व से वेदर्स आते हैं. वेदर्स का भी यही सिमिलर एक कॉन्सेप्ट है. बट अगर हम रोटेशन का करें तो इट्स डे एंड नाइट. तो आफ्टरनून के बाद इवनिंग आता है एंड फिर नाइट आता है. बट उसमें किसका इन्वॉल्वमेंट है? देयर इज एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मून. The moon, entrance of the moon comes in the evening. That is, even though earth has got drifted away from the sun, due to which its light is not coming, but still it's getting reflected through the moon. तो चंद्रमा की जो शीतलता है, moon is just radiating that divinity on the earth only because of the light which is falling on it from the sun. तो वो just एक enabler है. तो जैसे हमने देखा ना, राम जी ने हनुमान जी को भेजा जिससे स्टिल सीता में होप, उनकी आशा बढ़ी. स्टिल धरती पे जाला आया, शीतलता आई. उनको रावण राज्य में भी एक शीतलता का अनुभव हुआ. इवनिंग में वही एक हमें शीतलता मिलती है, रात में भी शीतलता. बट ग्रेजुअली उसकी भी पावर धीरे धीरे कम होती है. बट इट इज प्लेइंग अ वेरी डिवाइन रोल अंटिल एंड अनलेस जब तक लेट नाइट आती है 2:30 AM के अराउंड. एंड देन कम्स द सन एंड दैट्स व्हेन द अमृत वेला स्टार्ट्स. एंड ये मून और सन का बहुत एक खेल होता है कि अर्थ इज ऑल्सो रोटेटिंग, सन इज कॉन्स्टेंट. सूर्य वही है, परमात्मा वही है, लेकिन soul, earth, and which we say here as referring to as Mata Sita, and moon, which we are referring to Hanuman ji, or yes, Guru, उनका मूवमेंट इस तरीके से है. बट अर्थ पे रोशनी लानी है तो फिर अमृत वेला में सन, तो अर्थ का जो डायरेक्शन होता है या मून का भी जो होता है, उसमें अकॉर्डिंगली एक डिवाइन नेक्टर वाला वेला आता है विच इज कॉल्ड अमृत वेला, द डिवाइन फेस व्हेन सन कम्स एंड देन again ujagar, the ujala is there. The Ram Rajya starts with a very beautiful light all around. So Guru is the divine enabler, correct? But Amrit Vela bhi kaun souls pehchante? There's a very beautiful time, and who realizes that the souls who are awakened or who get awakened in that early nectar
4 a.m., 3 a.m., 4 a.m. till 4:30. They are able to observe the divinity on the earth and the divinity of the nature. Other souls are dormant. Some souls sleep. Some human beings sleep at around 3:30 at the time of waking up. So they are the dormant souls. मतलब वो उन्होंने अपनी दिव्यता को नहीं पहचाना, वो सच से रियलाइजेशन नहीं हुआ, तो वो गुरु को भी नहीं पहचाना। अमृत वेला जब परमात्मा का जो वेला स्टार्ट हुआ, मॉर्निंग एंड इवनिंग आएगा, वो भी नहीं पहचाना। तो गुरु इज़ अ डिवाइन एनेबलर, जिसकी वजह से ही हम रात्रि में भी बहुत उजाला अनुभव करते हैं। एंड धीरे धीरे परमात्मा का एक डिवाइन एनेबलर, जब परमात्मा की स्वयं एक उनके उजाला को सोल अनुभव कर सके। I hope you are getting the point. Similarly, revolution का भी सेम महत्व है। When the earth revolves around the sun, उससे seasons आते हैं। Spring is like the Amrit Vela of the entire 12 months period. And ये भारत में ही होते हैं 4 seasons. That's why India is regarded as a spiritual pilgrimage all around the globe. सोने की चिड़िया कहा जाता है इसको, ऐसे ही नहीं, इसमें बहुत गहरे रहस्य हैं, तभी इसमें 4 सीजन्स आते हैं। अमृत वेला, दैट इज अ स्प्रिंग, देन समर, देन रेन, देन ऑटम, एंड देन विंटर, एंड देन ग्रेजुअली, लाइक इट्स लाइक द सिमिलर कॉन्सेप्ट, राइट? जो 12 मंथ्स का में सीजन जो देखते 4 क्वार्टर्स जो आते हैं। सो दिस इज द इटर्नल मेलोडी। एंड तभी हनुमान जयंती, उसमें गुरु का बर्थ, and that's why it is eternally sacred. And वो पता है क्या कहते हैं, पर आप किसी कहीं भी जाइए, राम जी कहते हैं पहले मेरे भक्त को, पहले हनुमान जी को याद करो, एंड देन गुरु, एंड देन राम को याद करो। मतलब पहले गुरु को याद करो, एंड देन परमात्मा तो अपने आप आएंगे। सीता ने जब हनुमान को रियलाइज किया, when she was entrapped in the Ravan's captivation, then only she was able to realize Ram, क्योंकि अंदर वो जागी हुई थी। जब वो एंट्रैप हो गए, बट स्टिल एक जागृत अवस्था में थे, तभी रावण को नहीं अफेक्ट कर पाया। एंड उन जागृत अवस्था में थे कि नहीं, मुझे सत्य को पाना है, अपने को उनको पाना है, और मुझे इस एंट्रैपमेंट से रिलीज होना है, ताकि मैं अपने कर्म क्षेत्र में दिव्यता से लाऊं, तभी रावण राज्य से हटके एक राम राज्य लाऊं, एंड आई गेट फ्री। तो राम ने क्या किया, परमात्मा ने, हनुमान तो थे उनके लीडर, मतलब जो एक एनेबलर्स के लीडर, एंड एंटायर वानर सेना, मिलियंस ऑफ देम, उन्होंने पत्थर से कैसे स्थापना करी एक ब्रिज की, और कैसे हर्डल्स क्रॉस कर, उनमें एक तड़प थी, लगन थी। तो एक हिम्मत का कदम, आपका 100 कदम हिम्मत उनकी। राम के नाम से पत्थर पे राम का नाम लिखा हुआ था, जिससे उन्होंने एक ब्रिज बनाया। मतलब परमात्मा की रिमेम्बरेंस में ही गुरु अपना उठाते हैं हर कदम, तभी उनके हृदय में सिर्फ राम है, सीता है, कि सोल को, और सामने वाले सोल को हम मदर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, कि उसकी सेवा अनकंडीशनल लव के साथ। एंड लक्ष्मण जो राम के एनेबलर, द डिवाइन एनेबलर, अगर वो जब मूर्छित हुए, व्हेन ही गॉट हर्ट, उन्होंने पूरा संजीवनी बूटी उठा कर लिया। संजीवनी बूटी पूरा एक पर्वत उठा लिया, वो उसमें बूटी नहीं ढूंढ पाए, जस्ट टू सेव लक्ष्मण। मतलब इतनी दृढ़ता, इतनी डेडिकेशन एक गुरु में ही होती है, एंड दैट्स व्हाई गुरु इज द डिवाइन एनेबलर। दैट्स व्हाई इट गोस, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुवर बिमल, यश जो दायकु फलचारी। बरनौ रघुवर बिमल, यश जो दायकु फलचारी। जब हम गुरु को सरेंडर करते हैं अपने सत्य की खोज में, हमने सेल्फ को रियलाइज़ किया, एक डिविनिटी को, गॉड को रियलाइज़ किया। लोटस फीट, लोटस इज सिम्बॉलिक, हम कीचड़ में भी रहते हैं, हमें खिलना है गॉड की रिमेम्बरेंस। दैट्स व्हाई लोटस फ्लावर डज नॉट गेट अफेक्टेड विद द मड ऑन विच इट्स सर्वाइविंग, राइट। और उनकी ब्यूटीफुल फैमिली बनी है लोटस के अंदर, वो इससे खिले, बिकॉज वो उससे डिटैच्ड हैं, अपने कर्म भी कर रहे हैं। तो तभी हम उसे लोटस का एग्जाम्पल देते हैं। श्री गुरु सरोज इज कॉल्ड लोटस, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन को सुधारिए, मतलब मन सुधारना है, गुरु को सरेंडर करते। बरनौ रघुवर बिमल, रघुवर मीन्स राम, बरनौ रघुवर बिमल, राम को पाके बरनौ रघुवर बिमल, यश जो दायकु फलचारी, वही हमें फिर यश, दैट इज हमें फेम, प्रॉस्पेरिटी, प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी, ये सोल की इटर्नल वेल्थ है।
बरनऊ रघुवर बिमल यश जो दाई को फल चारी। जब हमने गुरु को पहचाना, गुरु पे सरेंडर किया, फिर सेल्फ को रियलाइज करके अच्छे से हमने एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ डिविनिटी का, फिर गॉड को पहचाना, खुद को पहचाना, फिर खुदा को पहचाना अंदर जाके, going inside and then connecting with him up above in this living in the falsification vibes maximum because it is the Kali Yuga. ट्रुथ की खोज में हमने उनको पहचाना, खुद को पहचाना, खुदा को पहचाना। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन को सुधारे, अपने मन को सुधारने की तरफ उसमें लालसा में एक हिम्मत का कदम हमारा 100 हिम्मत के कदम, उनके पद्मा कदम, हजारों कदम। तो वही राम को भी कितना तड़प था, राइट? वर्ण रघुवर बिमल यश जो दाई को फलचारी, तब वो हमें यश प्राप्त करते हैं। एंड दिस इज द ब्यूटिफुल थिंग। एंड अभी हम सब्सिक्वेंट सेशन में हनुमान चालीसा को बहुत ब्यूटीफुल तरीके से समझेंगे, एक उसके डिवाइन लाइन्स को बहुत एंजॉय करते हुए, उसका कैसा गहरा रहस्य उसमें समाया है। जब हमने एक ब्यूटीफुल ट्रुथ ही समझा ना, देन वी विल रियलाइज दैट थिंग, करेक्ट? And you will really enjoy. And that's what Hanuman Jayanti is all about. Om Shanti. I actually do one thing जो हमें divinity को, हमें intellect को strong बनाएगा, बहुत divine और purity से awaken करेगा। because शेरनी का दूध सोने के बाद में था, ऐसा अगर हम इसको रोज़ practice करेंगे ना, इसमें purity और peace है जिसके intellect में, and वही एक उसमें एक divine power रह सकती है। That is, and you can employ other ways as well. आपसे की शेयर करता हूँ जो आपको हेल्प करेगा, because it helps me also immensely how to cultivate inner peace within, considering everything as a teacher. Om Dyur Shanti Antariksham Shanti Prithvi Shanti Apah Shanti Oshadhyah Shanti Vanaspatyaha Shanti Vishve Deva Shanti Brahma Shanti Sarv Shanti Shantireva Shanti Sama Shantiredi. Om Shanti Shanti Shanti. Om. Om. What is this? This is like the meditation. Meditation means meditate, to connect. That is connecting within. इसमें ब्यूटीफुल पीस और ट्रूथ अवेकन होगा, बिकॉज अंदर से रतन समाये हैं, तभी हमारा इंटेलेक्ट डिवाइन होता जाएगा एंड हम अपने ट्रुथ को पहचान पाएंगे, गुरु को पहचान पाएंगे, एंड देन गॉड को पहचान पाएंगे। दैट्स व्हाई इट सेड शेरनी का दूध सोने के पत्ते में कह सकते। दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड जस्ट प्रैक्टिस यू विल बी एबल टू रियलाइज दिस डिवाइन ट्रूथ। एंड नेक्स्ट सेशन में हम बहुत ब्यूटीफुल रहस्य समझते हैं। हनुमान चालीसा को हम गो थ्रू करेंगे एंड वी विल लर्न विद इटर्नल जॉय हाउ द ब्यूटीफुल लाइन ऑफ, हाउ द ब्यूटीफुल वर्ड्स ऑफ दिस हनुमान चालीसा, हाउ ईच वर्ड्स ऑफ दिस हनुमान चालीसा इज सो डीप एंड helping the soul to really dance and inculcate the divine wisdom to beautify one's own life in a very, very holistic and easy manner. God bless you. Om Shanti. Wish you a very, very happy Hanuman Jayanti. Jai Sachidanand Ji, that is, जिसके मन में है सत्य समाया, जिसके चित्त में है सिर्फ सत्य समाया, वही है सदा आनंद में समाया है, वही है हमेशा ब्लिसफुल और कंटेंटेड स्टेज में रहना, just the longing of every soul while doing all the daily karmas. Om Shanti. Happy Hanuman Jayanti. God bless.